Good evening, sir. Yeah, very good evening, Anuj. Just give me 2 minutes, I will start. Is board visible to all of you, everyone? On both the sides, Tirth, Anuj? लेकिन कितना है वो? Okay. Yes, yes, yes. Just a moment. Yes, I think it's clear now. ओके, मैं वो उस लाइन के नीचे ही लिखते जाऊंगा, ठीक है? So in surface chemistry, the chapter is basically divided into two different parts. पहला जो part है, it is strictly based on the concept of adsorption, और सॉरी, दूसरा जो part है, it is whole soul dealing with colloids, which is a very special type of a solution. ठीक है? अब इसमें adsorption and absorption दो इंडिविजुअल मैकेनिज्म्स है, दोनों का अपना अपना प्रिंसिपल होता है, लेकिन सरफेस केमिस्ट्री डील्स विथ व्हाट? मैकेनिज्म्स which are only and only occurring at surfaces, or we can say them as interfaces. So adsorption is deposition of one on surface of another, करेक्ट? तो जो डिपॉजिट होता है, that material or substance is known as adsorbate. It is the substance deposited. Then what is adsorbent? It is a substance on whose surface deposition occurs. तो एडसॉर्प्शन जो होता है वो कितने टाइप का होता है? द क्लासिफिकेशन ऑफ एडसॉर्प्शन, इट इज ऑफ two different types, that is physical and chemical, जिसे हम लोग और नाम से जानते हैं फिजिसॉर्प्शन एंड केमिसॉर्प्शन. अब ये फिजिकल केमिकल में ना कौन से फोर्सेस इन्वॉल्व है, क्या कंडीशन रिक्वायर्ड है, टेम्परेचर की डिपेंडेंसी क्या है, सरफेस एरिया की डिपेंडेंसी क्या है, ये फैक्टर इन्हें डिस्टिंग्विश करने के लिए हम लोग यूज करते हैं. फर्दर, most important part, whenever we will be applying talcum powder on skin surface, will it be adsorption or absorption?
adsorption. But can we remove the adsorbed layer of talcum powder easily or with the difficulty? Easily. Reaction from your hydrocarbons chapter, बच्चों, conversion of alkene or alkyne into alkane. What is the condition needed for that? Catalytic reduction अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो catalyst is required, correct? Usually it is hydrogenation of alkene giving alkane, or what we can say, complete reduction of alkyne will also result into alkane formation, and we need a catalyst such as NiPT-PD for this reaction. So Anuj, Yes, sir. Anuj, can you tell me what is the role of catalyst in this hydrogenation reaction? या फिर इन जनरल किसी भी रिएक्शन में जहां पे कैटलिस्ट इन्वॉल्व होता है उसका रोल क्या होता है? To increase the rate of reaction. दैट Lowers इज the बाय डूइंग व्हाट? बरोबर है, इंक्रीजिंग रेट ऑफ activation रिएक्शन. energy कम कर देता है. यस, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है. लेकिन ये एक्टिवेशन एनर्जी कम करना, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना, इट इज ऑल पॉसिबल बिकॉज Surface area बढ़ा. कैटलिस्ट सरफेस एरिया बढ़ा देता है. करेक्ट. तो सरफेस एरिया पर जाकर हाइड्रोजन गैस विल गेट इजीली एडसॉर्ब, or during that adsorption, every adsorption process is exothermic process. Every adsorption is exothermic process. तो उसमें physical और chemical, obvious है, physical adsorption will be releasing low amount of heat and chemisorption will involve larger amount of heat evolution. तो वो magnitude wise कितना है? I will note down. Physical adsorption, it is first of all non-specific in nature, whereas chemisorption is highly specific. Then this involves delta H as 20 to 40 किलोजूल पर मोल, और ये साइन नेगेटिव होगा. हियर नेगेटिव का मतलब क्या है? हीट इज बीइंग इवॉल्व, और यहां पर डेल्टा एच की वैल्यू -40 to 200 kilojule per mole. The next is physical adsorption involves van der Waals forces between adsorbate and adsorbent, whereas this involves chemical forces. अब chemical forces का मतलब क्या होगा बच्चों? तो chemical bonds present होंगे, and we know that chemical bond का मतलब या तो आयनिक होगा, या तो कोवेलेंट होगा, या तो हाइड्रोजन होगा, या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी हो सकता है. तो केमिकल फोर्सेस का मतलब है दिस इन्वॉल्व्स केमिकल बॉन्ड्स, ये. एंड फाइनली फिजिकल एडसॉर्प्शन, multi-layer formation can occur, whereas in chemical adsorption there is only monolayer formation occurs. This is the difference between, key difference between physical and chemical adsorption. Then तीर्थ, अगर किसी प्लेन सरफेस पर ब्लैक या ब्लू कलर की इंक स्पिल हो चुकी है, हाउ यू विल वाइप इट अप? अरे क्या तीर्थ, इंक स्पिल हो चुका है, हमें उसे क्लीन करना है, टिश्यू पेपर. लेकिन द मोमेंट यू पुट दैट टिश्यू पेपर ऑन दैट स्पिल्ड लिक्विड, एक्चुअल ऑब्जर्वेशन क्या करेंगे हम लोग? बरोबर. तो वहां पे इंक अब्सॉर्ब हो गई ऐसे हम लोग बोलते हैं. लेकिन वही टिश्यू पेपर ड्राई भी होता है, लेकिन ड्राई होना इसका मतलब है सॉल्वेंट जो अब्सॉर्ब हुआ था वो इवापोरेट हो गया, लेकिन उसका कलर नहीं निकलता. तो कलर रिटेन होना इसका मतलब
इंक में जो डाई पार्टिकल हम लोग यूज करते हैं वो डाई पार्टिकल एडजॉर्ब हो चुके हैं और सॉल्वेंट जो था वो एब्जॉर्ब हो गया। तो एब्जॉर्ब्ड सॉल्वेंट इवापोरेट भी हो गया, लेकिन एडजॉर्ब्ड डाई पार्टिकल्स सरफेस पर टिके रहेंगे, जिसका मतलब है टिश्यू पेपर की केस में एडजॉर्प्शन भी हुआ एंड एब्जॉर्प्शन भी हुआ। जब ये दोनों साइमल्टेनियसली चलते हैं तब उस प्रोसेस को कहा जाता है सॉर्प्शन। व्हेन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन ऑकर साइमल्टेनियसली। ठीक है। देन अब ये एडजॉर्प्शन जो है होता है उस पर अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन इज, सबसे पहला है प्रेशर। ईशान, आर यू देयर? Yes, sir. हाँ, ईशान, कैन यू टेल मी फिजिकल एडजॉर्प्शन। सबसे पहले तो कॉन्टेक्स्ट फिक्स रखेंगे। फिजिकल एडजॉर्प्शन का हमें देखना है, इफ यू आर इंक्रीजिंग द प्रेशर व्हाट हैपेंस विथ अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन? Please, no? It should increase. If more pressure is there, then हाँ, that's what I want to ask. Increasing pressure will lead to increasing adsorption. Will this trend continue till infinity or it will have a certain limit? I guess it would have a certain limit depending on how much we are willing Correct. to absorb. Correct. Because for physical adsorption, as we have mentioned, multi-layer formation is occurring. जिसका मतलब है, when I am writing with this marker on this surface of white board, let me draw this line, another line, third line, and fourth line. As you can see, the distinct visibility of the fourth line compared to the first one. जिसका मतलब ये है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लाइन जब मैंने ड्रॉ की तो चारों लाइंस में एडजॉर्प्शन हुआ ही है, लेकिन हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन इज देयर इन फोर्थ लाइन। तो ये हाइयर अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन क्यों मिला? बिकॉज आई मस्ट हैव अप्लाइड हाइयर प्रेशर while drawing the fourth line. करेक्ट? तो इसका सीधा ये मतलब होता है that adsorption is directly proportional to pressure. बराबर? लेकिन इस फोर्थ लाइन के आगे अगर मैंने प्रेशर में कितना भी इंक्रीज करते गया तो लाइन की विजिबिलिटी सेम ही रहेगी। मतलब क्या? तो एडजॉर्प्शन वर्सेस प्रेशर अगर हम ग्राफ ड्रॉ करने के लिए जाएंगे तो इनिशियली जैसे प्रेशर बढ़ेगा एडजॉर्प्शन ड्रास्टिकली बढ़ेगा, विल रीच टू मैक्सिमम एंड देन विल रिमेन कांस्टेंट। तो जिस पॉइंट ऑफ प्रेशर पे एडजॉर्प्शन मैक्सिमम हो जाएगा, दिस इज नोन एज क्रिटिकल प्रेशर, एंड आफ्टर दैट फॉर दिस पर्टिकुलर रीजन एवरीवेयर adsorption is independent of pressure. It is not at all dependent on pressure. So it can act as zero order. And for this particular region, initial ranges में adsorption is directly proportional to pressure. ये ग्राफ और लिमिट ऑफ प्रेशर तुम्हें याद रखना है। लोअर प्रेशर पे इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एट हायर प्रेशर पे इट इज इंडिपेंडेंट। ये हमें फ्रूनलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म के लिए लगेगा बच्चों, ये वाला फैक्टर। आई होप इट इज क्लियर। फिर तनुज? Yes, sir. Then the second factor was temperature, and temperature के लिए as यहीं पर उसका रीजन देखो मिलेगा। डेल्टा एच नेगेटिव है। डेल्टा एच नेगेटिव का मतलब क्या है? एडसॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक। फिजिकल एडसॉर्प्शन है लीस्ट एक्सोथर्मिक, केमिकल एडसॉर्प्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। लेकिन
जो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और हमने टेम्परेचर को बढ़ाना शुरू कर दिया, तो ऑब्वियस है एक्सोथर्मिक विल रिजल्ट इनटू एंडोथर्मिक, तो मटेरियल एडसॉर्ब हुए बिना डिसॉर्ब होना शुरू हो जाएगा। दैट इज इंस्टेड ऑफ डिपोजिशन, डिपॉजिटेड मटेरियल रिमूवल उसका शुरू हो जाएगा। तो टेम्परेचर का फैक्टर कैसे अफेक्ट करेगा? एडसॉर्प्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। लोअर द टेम्परेचर, favorable will be the condition for adsorption. Third factor is nature of adsorbate and adsorbent. अब ये नेचर का मतलब क्या है? एडसॉर्बेंट पहले एक्सप्लेन करता हूं। एडसॉर्बेंट का नेचर जब हम लोग डिस्कस करते हैं तो उसका दो ही नेचर पॉसिबल होता है, पोरस नेचर या नॉन पोरस नेचर। स्पंज पोरस नेचर का है, तो स्पंज पे अगर हम टैल्कम पाउडर एडसॉर्ब करने के लिए जाएंगे तो स्पंज जितना ज्यादा पोरस होते जाएगा उतना उसका इंटरफेशियल या सरफेस एरिया बढ़ते जाएगा, तो एडसॉर्प्शन की क्वांटिटी भी ज्यादा होती जाएगी। तो नेचर ऑफ एडसॉर्बेंट का मतलब मोर पोरस द एडसॉर्बेंट, मोर फेवरेबल विल बी द एडसॉर्प्शन। लेकिन नेचर ऑफ एडसॉर्बेट के लिए थोड़ा सा अलग ट्रेंड है, जिसमें नेचर ऑफ एडसॉर्बेट का मतलब वेदर सॉलिड्स और लिक्विड्स और गैसेस, इन तीनों में से हाईएस्ट रेट ऑफ एडसॉर्प्शन किसका होगा? तो क्वाइट ऑब्वियसली gases will be adsorbed fastly than liquids than solids. ये ट्रेंड ऑब्जर्व होता है। लेकिन अभी गैसेस के लिए भी देखेंगे तो हमारे पास n नंबर ऑफ गैसेस अवेलेबल होते हैं। H2 है, N2 है, हीलियम है, सारे नोबल गैसेस है, O2, CO2, N2, NH3 एटसेट्रा। इन सारे गैसेस में से कौन सा गैस फास्टली या रेडिली एडसॉर्ब होना शुरू हो जाएगा? तो उसके लिए कंडीशन ये होती है कि स्टेट्स ऑफ मैटर में या गैसियस स्टेट जब हम लोगों ने किया था, गैसियस स्टेट में एक टॉपिक था क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर लिक्विफैक्शन ऑफ गैस। जो गैस जितने इजीली लिक्विफाई हो जाएगा उतना ही उसका एडसॉर्प्शन का रेट भी ज्यादा होगा। तो सॉलिड लिक्विड गैस में गैसेस विल बी एडसॉर्ब्ड एट फास्टर रेट, मोर ओवर हाईली लिक्विफाइबल गैसेस हायर इज रेट ऑफ एडसॉर्प्शन। ये सारे फैक्टर्स अफेक्टिंग एडसॉर्प्शन होते हैं। आई होप दिस स्लाइड इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ईशान, वेरी क्लियर? ईशान, तेरे घर पे शायद से ना मुझे ना तेरी आवाज कभी सुनाई नहीं देती रे। चलो, कॉपीड। Yes, sir.
चलो, note down this first. म्हणजे इराण्याच्या हॉटेलची जेवण केली. इराणीच्या हॉटेलची चहा म्हणजे खाली ठेवायला सांग. खाली ठेवायला सांगतो. मी आणतो. जेवण काय? Noted, बच्चों? Anuj, Ishan, done? Yes, sir. Just for last part. Do it first. Finished, Anuj? Yes, sir. चल, अब इसमें ना तुम्हें फ्रोंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म पे इक्वेशंस आते हैं, मतलब यही वाला x by m equals to k into p raised to 1 by n. अगर हम लोग इस इक्वेशन में k को निकाल देंगे तो तीर्थ यू टेल मी आफ्टर रिमूवल ऑफ k एक्सप्रेशन क्या बचेगा? What is that p raised to 1 by n? अगर n की वैल्यू 1 होती तो x by m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p बन जाता, लेकिन x by m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, मतलब एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p. ये कौन से प्रेशर के लिए एप्लीकेबल होगा? एट लो प्रेशर. लेकिन एट हाई प्रेशर हम लोगों ने क्या देखा है? एब्जॉर्प्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर. तो p रेज टू 0 का मतलब क्या है? फ्रोंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म इज वैलिड ओनली फॉर इंटरमीडिएट प्रेशर, क्योंकि प्रेशर रेस टू देखो क्या लिखा हमने 1 बाय n. तो इसकी वैल्यू जो है वो हमेशा किसके बीच में होनी चाहिए? 0 to 1 के बीच में होनी चाहिए. अंडरस्टूड? चलो, अब थोड़ा सा इसके आगे जो एक पार्ट है वो बायोमोलिक्यूल्स का जो चैप्टर है अपना उससे रिलेटेड, लेकिन कैटालिसिस जो है, कैटालिसिस को हमें डिस्क्राइब करना होता है. इसमें कैटालिसिस कितने टाइप का है, इनहिबिटर क्या है, ऑटो कैटालिस्ट क्या है, नेगेटिव कैटालिस्ट क्या है, ये सारे. ईशान, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में टेट्रा इथाइल लेड का इंपॉर्टेंस क्या होता है बेटा? टेट्रा इथाइल लेड, मुझे कोई आइडिया नहीं. अच्छा, अरे हाँ, यस करेक्ट. तीर्थ, कहां पर लिखा हुआ है? बुक के पीछे लिखा है तूने, मतलब अपने नोटबुक के पीछे लिखा है? हाँ, वो कब लिखा होगा मैं बोलता हूं. जब हम लोग डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट कर रहे थे, या पी ब्लॉक एलिमेंट लेड पीबी का यूज किस में होता है? कॉम्प्लेक्स बनाता है वो टेट्राइथाइल लेड का, तब तूने लिखा था वो. हाँ, तो उसमें ना कैटलिस्ट जो होता है, एज वी नो ऑल, इट
गियर अप द रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है बाय प्रोवाइडिंग लार्जर सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। लेकिन काइनेटिक्स के चैप्टर में हमें एक एग्जाम्पल था ये वाला। नाउ यू पीपल आर गोइंग टू टेल मी विच वॉज दिस एग्जाम्पल। Anuj, can you please tell me this reaction was example of what? क्या था ये? बता सकते हो? तीर्थ, can you tell me? Exactly. ईशान, ये किसका एग्जाम्पल था? एकदम ऐसा एकदम पिक्यूलियर मैकेनिज्म था वो। दिस वाज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये वाला था। हाँ हाँ हाँ? हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर लिखा था। Yes, provided this was we have used in excess, ये था। तो एक्सेस में जब आ जाएगा तो वो सूडो फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा, अदरवाइज रेशियो 1:1 का काम कर जाएगा, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सॉरी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ये होगा बराबर। लेकिन अब हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें इंटरेस्ट है दो रिएक्टेंट्स अपने पास है और दोनों की स्टेट है लिक्विड, एंड H प्लस दैट इज नथिंग बट एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन दिस इज। तो एसिड कैटलाइज्ड होना मतलब क्या? एसिड इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट, और एसिड कौन से स्टेट में प्रेजेंट है? एक्वस, दैट इज लिक्विड स्टेट। तो व्हेन स्टेट ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू स्टेट ऑफ कैटलिस्ट, तो ये वाला एग्जाम्पल हो जाएगा होमोजेनस कैटालिसिस का। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं रिएक्शन लिखूं N2 plus 3H2 रिवर्सिबली गिविंग 2NH3 gas, hydrogen gas, N2 gas in presence of Fe loaded on alumina, या फिर molybdenum as promoter, तो Fe being metal, Al2O3 being metal oxide, molybdenum being metal, all the catalysts and promoters are present in solid state, whereas reactants are present in gaseous state. तो हमारे लिए state of reactant is not matching with state of catalyst, and hence Haber's process का ये जो example है, this is example of heterogeneous catalysis. फर्दर अगर हम लोग एंजाइम कैटालिसिस देखेंगे, जो तुम्हारे बायोमोलिक्यूल के चैप्टर में या केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का जो चैप्टर है उसमें भी है, एंजाइम कैटालिसिस के लिए कुछ फैक्ट्स या फैक्चुअल क्वेश्चन जिसे हम लोग बोलते हैं। सपोज हमें एमसीक्यू आया, ऑल एंजाइम्स आर बाय डिफॉल्ट डैश और ऑल एंजाइम्स आर केमिकली डैश, तो आंसर क्या होना चाहिए? उसका आंसर है ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। सबसे पहले तो why proteins? Because proteins are made up of alpha amino acids. एंजाइम्स में अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं, those alpha amino acids rearranges themselves to form protein, hence all enzymes are by default chemically they are protein. Then they are biocatalyst. What do you mean by biocatalyst? एंजाइम किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो ह्यूमन बॉडी के बाहर कैरी की जाती है उसमें कैटलिस्ट का रोल प्ले नहीं करेंगे। ह्यूमन बॉडी के अंदर चलने वाली सारी प्रोसेसेस बायोलॉजिकल या जिसे हम लोग फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस बोलते हैं, तो हर बायोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में रिक्वायर्ड कैटलिस्ट इज बायोकैटलिस्ट, जिसके चलते बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेसेस जो हमारी बॉडी के अंदर हमेशा चलती रहती है, फॉर एग्जाम्पल डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ब्लड सर्कुलेशन, ड्रग कैरिंग प्रॉपर्टी, ये सारी की सारी रिएक्शंस में
जो कैरियर पार्टिकल होता है दैट इज एंजाइम। तो वो काम कैसे करता है? एंजाइम कैटालिसिस, इट वर्क्स ऑन लॉक एंड की मॉडल। तो कैसे? एंजाइम जो होता है वो होता है लॉक, और सबस्ट्रेट जो होता है, सबस्ट्रेट का मतलब क्या क्या हो सकता है देख लो। सबस्ट्रेट का मतलब हो सकता है कोई भी बायोमोलिक्यूल, या फिर कोई भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, या फिर कोई भी ड्रग मॉलिक्यूल। इनमें से कुछ भी अगर प्रेजेंट है तो वो होगा अपना सबस्ट्रेट। तो काम कैसे चलता है? तो एंजाइम इज लॉक, तो एंजाइम का एक स्पेसिफिक शेप होगा, दिस इज अवर एंजाइम, प्लस उसका एग्जैक्ट कॉम्प्लीमेंट्री शेप का सबस्ट्रेट हमारे पास होगा, दिस इज अवर सबस्ट्रेट। तो ये सबस्ट्रेट जाकर जहां पर रिक्वायर्ड साइट है वहां पर अटैच हो जाता है। तो जहां पर उसका अटैचमेंट एक्सपेक्ट होता है, दिस इज नोन एज एक्टिव साइट। और ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है दिस इज नोन एज एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, जो डीकंपोज होकर हमें प्रोडक्ट देगा एंजाइम प्लस प्रोडक्ट। ये हमारा एंजाइम रीजनरेट हुआ। तो सबस्ट्रेट का शेप और प्रोडक्ट का शेप देख लो, चेंज हो गया, मतलब रिएक्टेंट का कन्वर्जन प्रोडक्ट में हो गया, एंजाइम एज इट इज रिटेन हुआ। तो कैटलिस्ट का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो अभी एंजाइम बता रहा है, दैट कैटलिस्ट डू नॉट टेक पार्ट इन अ रिएक्शन, बट इट इन्वॉल्व्स इन अ रिएक्शन ओनली फॉर द इंटरेस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, जो है अपना ईएस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट कैटालिसिस। 3 टाइप, ऑटो कैटालिसिस अभी बताना बाकी है। हे जेवता ना मला। डन बच्चों? Yes, sir. ओके, अभी एक और एग्जांपल है, दैट इज ऑटो कैटालिसिस। तो ऑटो कैटालिसिस होता क्या है? तो जिसके लिए ना, लेट मी राइट डाउन अ रिएक्शन।
KMnO4 plus H2SO4 plus H2S giving MnSO4 plus K2SO4 plus H2O plus sulfur precipitate. तीर्थ, you tell me ये exactly कौन सी रिएक्शन हो रही है? नहीं, मैं you can go on telling me the options like whether this is decomposition reaction, addition reaction, displacement reaction. हाँ हाँ अनुज, ईशान, no one? redox reaction. Yes, exactly. मैंगनीज +7 से लेकर +2 हुआ एंड सल्फर -2 से लेकर 0 हुआ. तीर्थ, गॉट दिस रिएक्शन? तो यहां पे ना जब मैंगनीज +7 से मैंगनीज 2+ आयन बनता है बाय गेन ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो इस रिएक्शन का रेट यूजुअली इट इज सपोज टू बी डिपेंडेंट ऑन KMnO4 और H2SO4 or concentration of H2S. This is expected rate law, but actually क्या होता है, rate of reaction increases with concentration of Mn2+ ion. जिसका मतलब क्या हुआ, इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है ना, वो प्रोडक्ट ही इस रिएक्शन का रेट एक्सेलरेट कर देता है. Then it is known as autocatalysis. So rate increases, which is dependent on product concentration and not on reactant concentration. It will be known as autocatalysis. Clear? Yes, sir. Let's move to the next one. अच्छा, ये एब्जॉर्प्शन को लेकर है ना, कौन सा एनालिटिकल मेथड एब्जॉर्प्शन टेक्निक पर डिपेंड करता है? अनुज, कैन यू प्लीज टेल मी द नेम ऑफ दैट एनालिटिकल टेक्निक जो एब्जॉर्प्शन के प्रिंसिपल पर काम करती है? और एनीवन No फ्रॉम idea. यू? No नो आइडिया. idea. इट इज नोन एज क्रोमेटोग्राफी. ये जो क्रोमेटोग्राफी होती है, इट वर्क्स ऑन द बेसिस और ऑन द प्रिंसिपल ऑफ selective adsorption technique, क्रोमेटोग्राफी. और क्रोमेटोग्राफी में फिर से कौन से, तो या तो इट विल बी TLC, दैट इज थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, या फिर इट इज PC, दैट स्टैंड्स फॉर पेपर क्रोमेटोग्राफी. और इसमें हर किसी क्रोमेटोग्राफी में देयर आर 2 phases इन्वॉल्व. Every chromatography consists of 2 components, that is mobile phase
एंड स्टेशनरी फेज। तो उसके नाम में ही छुपा हुआ है, मोबाइल फेज विल कीप ऑन मूविंग, स्टेशनरी फेज विल बी स्टैक। तो स्टेशनरी फेज जो है वो होता है अपना एडजॉर्बेंट, एंड मोबाइल फेज जो होती है इट इज अवर एडजॉर्बेट। यूजुअली स्टेशनरी फेज जो हम लोग यूज करते हैं सिलिका जेल, ये यूज होता है, या फिर इट इज टीएलसी जब करते हैं तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में एल्यूमिनियम फॉइल विथ सिलिका जेल, ये वाला यूज होता है। ये डायरेक्ट फैक्ट्स, नोन फैक्ट्स एंट्रेंस में पता होने चाहिए हमें। चलो नोटेड बच्चों? यस। अब इसमें एब्जॉर्प्शन में ही एक और छोटा सा टॉपिक हमें पढ़ना है। आई थिंक हमने रेगुलर लेक्चर में अपने पोदार में आई थिंक वी हैव कवर्ड दिस, यू जस्ट लेट मी नो। जियोलाइट्स किया है हमने तीर्थ? अच्छा, हाँ एग्जैक्टली, बराबर। ये जियोलाइट जो होते हैं ना, दोज आर शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट, जिनमें कैविटी साइज विल डिटरमाइन द रिएक्टेंट। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? कैविटी साइज जितनी स्मॉलर होते जाएगी, रिएक्टेंट की साइज भी स्मॉल ही रखनी होती है। अगर मैक्रोमोलिक्यूल लिया तो लार्ज कैविटी साइज का जियोलाइट हम लोग यूज करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है Na2O डॉट Al2O3 डॉट SiO2 डॉट XH2O, and hence they are known as sodium alumino silicate, जिनमें फ्रेमवर्क चलता है AlOSi वाला। ये चेन होती है जिसमें सिलिका फ्रेमवर्क contains substituted Al atoms, ये वाला। और जिसका एक एग्जाम्पल भी तुम्हें याद रखना है, ZSM5 in petrochemical industry for carrying out cracking का reaction, that is heating hydrocarbons at high temperature to obtain fractions। उस रिएक्शन में ZSM5 ये वाला जियोलाइट कैटलिस्ट यूज होता है। Note down, we will move to colloids. Noted? हाँ, done. Okay.
Now regarding colloids, they are always compared with true solutions and suspensions. जिसका एग्जाम्पल था सॉल्ट प्लस वाटर, मिल्क, सैंड प्लस वाटर. Particle size less than 1 nanometer, between 1 to 100 nanometer, and particle size greater than 1000 nanometer. For true solution, Tyndall effect is not seen. Over here also, Tyndall effect not seen. Only colloids will exhibit Tyndall effect. Further, true solutions, transparent, they are perfectly homogeneous. These are translucent. They are apparently homogeneous, but microscopically heterogeneous. For suspensions, they are purely heterogeneous. ये है distinguish between colloids, true solutions and suspensions. लेकिन colloids कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं? तो ये ना बहुत ही जनरल एज पे चलने वाला क्लासिफिकेशन होता है. इफ यू रिमेंबर सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी करते हुए हमने ये पढ़ा था that every homogeneous mixture, I repeat, every homogeneous mixture is known as a solution. लेकिन सॉल्यूशन के कितने टाइप होते हैं? ट्रू सॉल्यूशन भी है, कोलॉइड्स भी है, सस्पेंशन भी है. ये तीनों के तीनों सॉल्यूशंस ही है जिनमें बेसिक बाइफर्केशन होता है पार्टिकल साइज ऑफ सोल्यूट. ठीक है, या फिर उनका अपीयरेंस. तो अलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल और टू मोर मेटल्स. तो वो अगर होमोजेनस मिक्सचर बना रहे हैं तो अलॉय इज ऑल्सो सोल्यूशन. तो बेस्ड ऑन दैट, इफ यू रिमेंबर, ये हमारे नोटबुक में प्रेजेंट होना नोटेड होना चाहिए दैट सॉलिड लिक्विड गैसियस सोल्यूट कैन बी डिस्पर्स्ड इनटू सॉलिड लिक्विड गैसियस सॉल्वेंट. तो हमारे पास टोटल 9 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस मिलने चाहिए थे, जिसमें से अगर सॉलिड डिस्पर्स्ड इन लिक्विड है तो वो बन जाता है अपना सोल, और अगर लिक्विड डिस्पर्स इनटू सॉलिड है तो ये बन जाता है जेल. फर्दर, कोई भी सोल जो ज्यादातर तो कौन सी फॉर्म में होगा? लिक्विड. और जेल जो है वो होगा सेमी सॉलिड फॉर्म में. तो हेयर जेल जो होती है, हेयर जेल थोड़ी सी लेकर पानी में डालेंगे तो यू विल सी कोलॉइडल सॉल्यूशन तैयार हो जाता है. लेकिन हेयर जेल इज हैविंग हायर अफिनिटी फॉर द वाटर. तो जिनमें सॉल्वेंट की अफिनिटी ज्यादा है, दोज आर नोन एज लायोफिलिक सोल. तो लायोफिलिक सोल इज सॉल्वेंट अफिनिटी ज्यादा होती है. तो ऑब्वियस है लायोफोबिक सोल में सॉल्वेंट अफिनिटी कम हो जाएगी. तो सोल और जेल, ये जो दो अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, तो ओवर हियर यू कैन सी, अगर कोई सोल जेल में कन्वर्ट हो जाती है और जेल को फिर से सोल में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसे कहा जाता है रिवर्सिबल सोल. यूजुअली ये रिवर्सिबल सोल्स लायोफिलिक होती है, और इस मैकेनिज्म को हम लोग बोलते हैं थिक्सोट्रोपी, ये वाला. ठीक है. देन अब कोलॉइड्स की प्रॉपर्टीज भी होनी चाहिए. तो कोलॉइड्स की काइनेटिक प्रॉपर्टी जो है
उसमें आता है ब्राउनियन मोशन। लेकिन ब्राउनियन मोशन जो है, वो ब्राउनियन मोशन क्या प्रूफ करने के लिए यूज किया गया? इट प्रूव्स एक्चुअली एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्पर्शन मीडियम मॉलिक्यूल। तो प्रूव्स एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्पर्शन मीडियम मॉलिक्यूल। अब ये डिस्पर्शन मीडियम क्या होता है? तो जैसे हमें पता है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट टुगेदर मेक्स सॉल्यूशन। तो कोलॉइड के केस में सोल्यूट को बोला जाता है डिस्पर्स फेस, सॉल्वेंट को बोला जाता है डिस्पर्शन मीडियम, और सॉल्यूशन को बोला जाता है डिस्पर्शन। तो एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्पर्शन मीडियम मॉलिक्यूल का मतलब क्या है? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स सोल्यूट मॉलिक्यूल पे एक फोर्स एग्जर्ट करते रहते हैं, जिसकी वजह से सोल्यूट अपने आप रैंडम मोशन बताता है। दैट रैंडम zigzag continuous motion is known as Brownian motion, which is kinetic property of the colloid. Next one was optical property, और ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में हमें पढ़ना है टिंडॉल इफेक्ट। अब ये टिंडॉल इफेक्ट क्या है? इट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलॉइडल पार्टिकल्स, जिसकी वजह से ड्यू टू विच इट्स पाथ इट्स मतलब ड्यू टू विच पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल। और इसका यूज किया जाता है टिंडॉल इफेक्ट का टू मेजर साइज एंड नंबर ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स। ये कोलॉइड्स की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में से दो। चलो, पहले तो ये कंटेंट क्लियर है? अनुज, तीर्थ, ईशान? Yes, sir. लेट मी नो वंस फिनिश्ड बच्चों। Thanks. हाँ 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 हाँ, यस यस। ये काइनेटिक प्रॉपर्टी इज रिलेटेड विद मोशन, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी इज रिलेटेड विद बिहेवियर ऑफ लाइट। इसके बाद इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी शुरू हो जाएगी। सो उसमें
इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में 2 आते हैं, एक्चुअली 3 आते हैं। सबसे पहला जो है वो है इलेक्ट्रोफोरेसिस, उसके बाद जो है इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस, और इसके बाद जो है दैट इन्वॉल्व्स ओरिजिन ऑफ चार्ज ऑन कोलॉइडल पार्टिकल्स। अब इसमें इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब माइग्रेशन ऑफ solute particles, that is nothing but dispersed phase under electric field influence. ऑस्मोसिस में, नॉर्मल ऑस्मोसिस हमें पता है, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यहां पे मेम्ब्रेन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, एज सच इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस में तो नहीं होती, लेकिन इस पर बेस्ड एक डे टू डे लाइफ का एक मैकेनिज्म इन्वॉल्व है। बट इनिशियली it involves migration of solvent, that is nothing but dispersion medium under electric field, और इसका एग्जाम्पल या इसका यूज किया जाता है इलेक्ट्रो डायलाइजर में। इलेक्ट्रो डायलिसिस वी नो, किडनी फेल्यूर होने पर डायलिसिस किया जाता है पेशेंट का। तो किडनी का एक्चुअल काम क्या रहता है? टू रिमूव इंप्यूरिटीज। तो वो इंप्यूरिटी हम फ्रेश वाटर सैंपल उस डायलाइजिंग बैग से पास करते हैं। तो डायलाइजर से इट इज पास्ड विथ, एक्चुअली डायलाइजर बैग इज इंट्रोड्यूस्ड विथ वाटर करंट। और कौन सा वाटर? फ्रेश वाटर करंट। तो फ्रेश वाटर करंट बाकी सारे कंपोनेंट्स को अपने साथ ले जाएगा, लीविंग बिहाइंड द प्योर ब्लड। दिस इज हाउ ब्लड इज प्यूरिफाइड बाय यूजिंग डायलिसिस, which involves principle of osmosis, that is flow of solvent molecule, but this takes place under the influence of electric field, hence it is called electroosmosis. And origin of charge on colloidal particles, अब ये origin of charge कहां से आता है? तो we know that dispersed phase मतलब solute जो है it is overall surrounded by dispersion medium, लेकिन डिस्पर्शन मीडियम जो होता है वो पोलर अगर हुआ, यूजुअली इलेक्ट्रोलाइट होता है वो, तो इलेक्ट्रोलाइट इज ऑलवेज पोलर इन नेचर। वाटर भी लेंगे, वीकली क्यों ना हो, वो पोलर ही है। तो वीकली पोलर सॉल्वेंट में H प्लस OH माइनस प्रेजेंट है। अगर ब्राइन सॉल्यूशन लेंगे तो Na+Cl माइनस प्रेजेंट होगा। तो डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल पे Na+ जाकर डिपॉजिट होगा या Cl माइनस डिपॉजिट होगा, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते। ये वो कोलॉइडल पार्टिकल, डिस्पर्स फेस पार्टिकल खुद डिसाइड करता है कि मेरे सरफेस पर आकर कौन डिपॉजिट हो जाएगा। हेंस ओरिजिन ऑफ चार्ज ऑन कोलॉइडल पार्टिकल इन्वॉल्व्स प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्टिव एडसॉर्प्शन। वो जिसे पसंद करता है बस उसी को अलाउ करेगा डिपॉजिट होने के लिए। एंड ड्यू टू दिस we have two different types of souls, or we can say what, souls ही, positively charged and negatively charged soul. So positively charged souls में आ जाएंगे मेटल हाइड्रोक्साइड्स या फिर बेसिक डाइज। बेसिक डाइज में कौन कौन से हैं? तो तुम्हें एग्जांपल्स कुछ पिक्यूलियर याद रखने हैं। मिथिलीन ब्लू, क्रिस्टल वायलेट, देन नेगेटिवली चार्ज्ड सोल्स। नेगेटिवली चार्ज सोल का एग्जांपल मेटल सोल, गोल्ड सोल, देन एसिडिक डाइज,
एसिडिक डाइज में इसका एग्जांपल है इओसिन डाई एंड कॉन्गो रेड डाई। इओसिन डाई जो हम लोग बायो के सैंपल में यूज करते हैं टू सी द सैंपल क्लियरली डिस्टिंक्टली अंडर माइक्रोस्कोप, तो उसे थोड़ा हाईलाइट करने के लिए जो डाई यूज करते हैं वो है इओसिन डाई। और बेसिक डाई का एक और एग्जांपल था एलिजरिन डाई, ये वाले। नोट दिस। यस, पीएचडी है ना क्या अभिलाषा? After this, we have process named coagulation, flocculation, peptization. ये 3 processes है. After this, we have Hardy-Schulz rule, after which we have concept of gold number, and then we have a topic of emulsion. Then colloids will get finished in the chapter revision. So coagulation is exactly what मतलब एकदम वन लाइनर अगर मैं बोलूं तो coagulation is removal of charge on colloidal particles. तो इफ यू रिमेंबर इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो एग्जांपल होता है, शायद से मतलब तुम लोग जब एनसीईआरटी या स्टेट बोर्ड का बुक जब तुम लोग रिफर करोगे तो तुम्हें ये वाला डायग्राम उसमें मिल जाएगा। एक यू शेप ट्यूब होता है जिसमें एक कोलोइडल सॉल्यूशन फिल करके रखा हुआ है, 2 इलेक्ट्रोड्स आर डिप्ड इन दैट, और जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो माइग्रेशन ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स कैन बी ऑब्जर्व। तो किसी भी एक आर्म में लिक्विड लेवल ड्रॉप होना शुरू हो जाता है, दैट वाज इलेक्ट्रोफोरेसिस। बट वी मस्ट थिंक दैट अब ये लेफ्ट साइड वाला जो इलेक्ट्रोड है, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, दिस इज एनोड। तो अगर पार्टिकल्स एनोड की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं तो वी कैन डिटरमाइन द चार्ज ऑन कोलोइडल पार्टिकल्स। सो पार्टिकल्स मस्ट बी नेगेटिवली चार्ज। लेकिन जब इलेक्ट्रोड के सरफेस पर, चाहे वो एनोड हो या कैथोड हो, अपोजिटली चार्ज पार्टिकल माइग्रेट होकर जब इलेक्ट्रोड सरफेस पे जाके डिपॉजिट होगा
तो ऑब्वियस है उसका चार्ज नलीफाई हो जाएगा। तो चार्ज नलीफाई होना इज व्हाट, रिमूवल ऑफ चार्ज ऑन कोलॉइडल पार्टिकल, बराबर। तो जब चार्ज रिमूव हो जाएगा, एक्वस फेज में चलने वाला पार्टिकल या माइग्रेट होने वाला पार्टिकल सॉलिडिफाई हो जाएगा। सो लिक्विड फेज से हम उसे सॉलिड फेज में ला रहे हैं, एंड दिस कन्वर्जन इज ऑल्सो नोन एज प्रेसिपिटेशन। Hence, coagulation is known as precipitation of colloids. जिसका एग्जाम्पल है जब हमें कुछ ब्लीड होता है, ठीक है, तो FeCl3 सोल इज अप्लाइड ऑन वूंड। क्यों? क्योंकि वूंड जब होती है तो ब्लीडिंग होता है, ब्लड इज ऑल्सो कोलॉइड एंड ब्लड इज नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड। तो नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड पे FeCl3 पॉजिटिवली चार्ज सोल अप्लाई किया जाता है, तो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे के चार्ज को नलीफाई कर देंगे, ब्लड विल स्टार्ट टू क्लॉट फास्टली। ये कोएगुलेशन होता है। लेकिन व्हाट इज फ्लॉक्यूलेशन? तो जो कोएगुलेशन में जो प्रेसिपिटेट बना, ठीक है, प्रेसिपिटेट बनकर शायद से वो सस्पेंड भी हो सकते हैं पार्टिकल प्रेसिपिटेट के, कुछ देर के बाद those precipitate particles will start to settle down। ये सेटलिंग ऑफ प्रेसिपिटेट जो होती है, सेटलिंग ऑफ कोएगुलेट और प्रेसिपिटेट इज नोन एज फ्लॉक्यूलेशन। एंड व्हाट इज पेप्टाइजेशन? तो ईशान, सिल्वर क्लोराइड स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट है या हाईली सोल्यूबल सॉल्ट है? Sparingly, I think. स्पेरिंगली है, ओके। ये सिल्वर क्लोराइड कब फॉर्म होता है? कैन यू टेल मी? कौन से टेस्ट में? यू मस्ट हैव परफॉर्म दिस इन प्रैक्टिकल टू। वो या फिर एक रॉड लगाते हैं ना, उसमें लाइक dense white नो fumes निकलता है। नो नो नो, No, that was इफ यू other. टेक नॉर्मल टैप वाटर सैंपल एंड इफ यू ऐड सिल्वर नाइट्रेट के 2 ड्रॉप्स, याद आया कुछ? तीर्थ, याद आया ये वाला टेस्ट? अच्छा, अब तुम्हें प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मतलब अभी जो हुआ वो हुआ, छोड़ दे। टेस्ट फॉर हैलोजन्स में एक टेस्ट है, कंफर्मेटरी टेस्ट, OS plus AgNO3 if white turbidity occurs, chloride ion is present। ये होता है, ठीक है। तो हमारे टैप वाटर सैंपल में ऑब्वियस है क्लोरीन गैस या क्लोरीन की टैबलेट्स डिसइंफेक्टिंग एक्शन की वजह से डालकर रखी जाती है, तो हमें टैप वाटर प्यूरिफाइड आता है, बट इट इज क्लोरीनेटेड वाटर दैट वी ड्रिंक। तो उस क्लोरीनेटेड वाटर में 1 ड्रॉप ऑफ AgNO3 भी डाल देंगे तो भी व्हाइट टर्बिडिटी अपेयर होने वाली है। लेकिन व्हाइट टर्बिडिटी आना और व्हाइट प्रेसिपिटेट तैयार होना दो अलग अलग बातें हैं, बरोबर। तो टर्बिडिटी आने पर भी हम लोग कंक्लूजन क्या करते हैं? प्रेसिपिटेशन अकर, बट एक्चुअली इट इज नॉट प्रेसिपिटेट। तो टर्बिडिटी जो है, तो प्रेसिपिटेट को कोलॉइडल साइज तक ले जाने के लिए जो प्रोसेस होती है दैट इज पेप्टाइजेशन। ये इन 3 प्रोसेस का डिफरेंस है। कोएगुलेशन मतलब प्रेसिपिटेट करना, प्रेसिपिटेट को सेटलिंग करना मतलब फ्लॉक्यूलेट करना, और प्रेसिपिटेट कोलॉइडल साइज तक ले जाना पेप्टाइजेशन होता है। तीनों प्रोसेसेस का डिफरेंस क्लियर है बच्चों? अनुज, क्लियर है? Yes, sir. अब ये हार्डी-शूल्स रूल जो है ना, ये हार्डी-शूल्स रूल हमें क्या बताता है? चार्ज रिमूव करना है हमें कोएगुलेशन करने के लिए, तो चार्ज कैसे रिमूव किया जाएगा, इस मेथड के बारे में जो बताता है वो है हार्डी-शूल्स रूल, ठीक है। बट बिफोर दैट वी कैन थिंक अबाउट मेथड्स फॉर कोएगुलेशन। तो सबसे इफेक्टिव टेक्निक जो है
वो है इलेक्ट्रोफोरेसिस, प्रेसिपिटेट होकर ही रहेगा। या फिर यू कैन यूज बॉइलिंग मेथड, सॉल्वेंट इवेपोरेट हो गया तो बचेगा सोल्यूट, प्रेसिपिटेटेड। या फिर इट इज इन्वॉल्विंग फ्रीजिंग, और या फिर इट इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब हमें यह पता है इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है, तो ऐसा कोई भी सॉल्यूशन जिसमें आयंस प्रेजेंट है, बराबर। लेकिन इससे पहले वाली स्लाइड में जो हम लोगों ने नोट कर लिया था, सोल दैट इज कोलॉइड, दो टाइप के हो सकते हैं, पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज। तो हार्डी-शूल्स रूल स्पेशली पॉजिटिव नेगेटिवली चार्ज सोल को प्रेसिपिटेट करने के लिए, कोएगुलेट करने के लिए ये वाला रूल गवर्न करता है। वो क्या है? फॉर precipitation of negatively charged soul, order of coagulation strength is like Al3 plus greater than Ca2 plus greater than Na plus। मतलब क्या? सोल पे चार्ज है नेगेटिव, मतलब डिपोजिशन जो है पार्टिकल पे वो नेगेटिव आयंस का हो चुका है। तो नेगेटिव आयंस कैसे निकल जाएंगे? उन्हें पॉजिटिव आयंस के साथ कंबाइन करके छोड़ देंगे हम लोग। तो कौन सा पॉजिटिवली चार्ज आयन इफेक्टिवली काम करेगा? जिसका चार्ज ज्यादा है वो इफेक्टिवली काम करेगा। सेम फॉर पॉजिटिवली चार्ज सोल, ऑर्डर ऑफ कोएगुलेशन विल बी FeCN6 4 minus, highest than phosphate, than sulfate, than chloride। तो हार्डी-शूल्स रूल क्या बताता है? हायर द चार्ज and its magnitude on the ion, greater will be its coagulation capacity। ये हार्डी-शूल्स रूल बताएगा, ठीक है। देन गोल्ड नंबर जो है, इट इज द अमाउंट ऑफ कोलॉइड required in milligram to prevent coagulation of 10 ml of gold sol added with 1 ml of 10% NaCl solution। डेफिनेशन देखो, इट इज अमाउंट ऑफ कोलॉइड रिक्वायर्ड, क्या करने के लिए? तो गोल्ड सोल को कोएगुलेशन से प्रिवेंट करने के लिए। कितने ml गोल्ड सोल लिया है हमने? 10 ml ऑफ गोल्ड सोल का प्रिवेंशन करना है, कोएगुलेशन से उसे बचाना है, जिस गोल्ड सोल में ऑलरेडी क्या ऐड करके रखा हमने? 1 ml ऑफ 10% ब्राइन दैट इज NaCl सॉल्यूशन। इस गोल्ड नंबर को लेकर फैक्ट क्या याद रखना है? लोअर द गोल्ड नंबर, हायर विल बी कोएगुलेशन स्ट्रेंथ, बरोबर ना? क्योंकि गोल्ड सोल को कोएगुलेशन से बचाने के लिए अगर हमें बहुत कम मिलीग्राम से भी कम अमाउंट में कोलॉइड ऐड करना पड़ रहा है, मतलब क्या? वो कोलॉइड कोएगुलेशन से अच्छे से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, बरोबर। तो प्रोटेक्टिंग पावर कोलॉइड की डिटरमाइन की जाती है इस गोल्ड नंबर से, ठीक है। हमारे आइसक्रीम में जिलेटिन जो होता है, उस जिलेटिन का गोल्ड नंबर है 0.005 विच इज वेरी स्मॉल, लेकिन वहीं पे स्टार्च जो होता है उसका गोल्ड नंबर है 25 विच इज वेरी लार्ज। मतलब क्या है? आइसक्रीम को प्रोटेक्ट करने के लिए एक सर्टन यूनिट वॉल्यूम या यूनिट मास ऑफ आइसक्रीम, उसे कोएगुलेशन से बचाने के लिए
बस 0.005 ग्राम जिलेटिन काफी है। लेकिन अगर हम लोगों ने स्टार्च ऐड किया होता तो 25 ग्राम स्टार्च ऐड करना पड़ता एक सर्टन मास ऑफ आइसक्रीम को कोएगुलेशन से बचाने के लिए, जिसके लिए ये वाला स्टेटमेंट है, लोअर द गोल्ड नंबर हायर विल बी इट्स कोएगुलेशन स्ट्रेंथ। एंड आफ्टर दैट फाइनली इमल्शन। इमल्शन ये कौन से टाइप की सिस्टम होती है? तो इट इज लिक्विड लिक्विड सिस्टम। लेकिन ये दो लिक्विड्स कैसे होने चाहिए? इमिसिबल विथ ईच अदर। ये कभी मिक्स नहीं होने चाहिए एक दूसरे में, हम उन्हें मिक्स कराते हैं। कैसे? तो बाय एडिशन ऑफ सरफैक्टेंट मॉलिक्यूल। व्हाट इज दैट सरफैक्टेंट? बाय एडिशन ऑफ, उसे बोला जाता है इमल्सिफायर। इमल्शंस वो सारी प्रॉपर्टीज बताता है जो कोलॉइड सॉल्यूशन बताते हैं। टिंडॉल इफेक्ट हो, ब्राउनियन मोशन हो, इलेक्ट्रोफोरेसिस हो, ये सारी कोलॉइडल प्रॉपर्टीज इमल्शंस भी बताएंगे। ये इमल्सिफायर यूजुअली क्या होता है? सोप या डिटर्जेंट मॉलिक्यूल जिसमें होता है सरफैक्टेंट। सरफैक्टेंट का स्ट्रक्चर कैसे था? पोलर हेड एंड दिस वाज नॉन पोलर टेल। नॉन पोलर टेल का नेचर होता है हाइड्रोफोबिक और पोलर हेड का नेचर होता है हाइड्रोफिलिक। ये वाला स्ट्रक्चर था इसका सरफैक्टेंट मॉलिक्यूल का। दिस इज अवर सरफैक्टेंट, दैट इज सरफेस एक्टिव एजेंट मॉलिक्यूल, ये वाला था। और इसमें से अगर ये वाला पार्ट तुम्हारा हो चुका है, ये लेफ्ट साइड वाला पार्ट हो चुका है क्या बच्चों? नोट करके। अनुज तेरा भी हुआ है? यस सर। यस। अब इसमें ना एक तो पार्ट शायद से मतलब गलती से रह गया, वो था अपना टाइप्स ऑफ कोलॉइड। तो टाइप्स ऑफ कोलॉइड में हमें 3 टाइप्स है टोटल। पहला है मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स। और ये मल्टी मॉलिक्यूलर का मतलब क्या होता है? बहुत सारे एटम्स या मॉलिक्यूल्स इकट्ठा आकर कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाते हैं, जिसका एग्जांपल है गोल्ड सोल, जिसमें गोल्ड के बहुत सारे स्मॉलर साइज के पार्टिकल्स अक्यूमुलेट होकर कोलॉइडल साइज का पार्टिकल बना लेंगे। सेकेंड इज मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड। उसके नाम में ही है मैक्रोसाइज्ड पॉलीमेरिक चेन स्ट्रक्चर, जिसका एग्जांपल होगा प्रोटीन सॉल्यूशन या फिर स्टार्च सॉल्यूशन। और जो तीसरा होता है एग्रीगेटेड कोलॉइड्स। या एग्रीगेटेड का मतलब होता है माइसेल फॉर्मेशन। व्हाट इज दैट माइसेल? तो ये सारे सरफैक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो मैंने वहां पर ड्रॉ किए थे, वो अपने आप को एक स्पेसिफिक वे में ओरिएंट कर देते हैं, समथिंग लाइक दिस। ये होता है माइसेल, नॉर्मल माइसेल। अगर ये सारे कुछ इस तरीके से ओरिएंट हो चुके हैं, एग्जैक्टली उल्टा ओरिएंटेशन आया हमें, देन दिस इज नोन एज रिवर्स माइसेल। तो ये रिवर्स माइसेल कब काम में आता है? जब हम लोग वाटर इन ऑयल इमल्शन बनाते हैं। और ये नॉर्मल माइसेल कब आता है? जब ऑयल इन वाटर इमल्शन बनाते हैं। इन दोनों के लिए दो अलग अलग माइसेल्स काम करते हैं। वेरी क्लियर बच्चों? यस सर। नाइस, इट वाज वेरी इफेक्टिव वन। चैप्टर का रिवीजन भी पूरा हो गया, प्रॉपर हुआ। Noted the content? Yes, sir. Ishan, noted na? Yes, sir. Yes. Okay. So, okay, it's almost 10:40. After this,
I will share सरफेस केमिस्ट्री का प्रैक्टिस शीट एंड सरफेस केमिस्ट्री का ही क्वेश्चन पेपर भी. प्रैक्टिस शीट में 50 क्वेश्चंस है, क्वेश्चन पेपर में 50 क्वेश्चंस है. टोटल 100 क्वेश्चंस आर देयर. You will be solving those both sheets in daytime for tomorrow. In the evening, we will meet for online. Is it okay? Yes, Okay, sir. ईशान? Yes. चल, ठीक है. तीर्थ, अगर अगले 10-15 मिनट में मुझसे रह गया तो प्लीज गिव मी रिमाइंडर मैसेज फॉर प्रैक्टिस शीट एंड क्वेश्चन पेपर. ठीक है? या, थैंक यू. गुड नाइट. thank you, sir. Bye, Good, sir. good night. Bye Thank you, bye. sir. Yes, sir.